آج سب سے پہلے اپنے معزز ویور سے معذرت کرنی تھی کیونکہ میرا جہاں پہ گھر ہے تو وہاں باہر گلی میں اپنی روزی کمانے والے لوگ گزرتے رہتے ہیں، تو ان آوازوں کو مائنڈ نہ کیے کریں، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب راوی ہیں کہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس HMC ٹیکسلا نئی بنی تھی اور اس دن بڑے زور و شور کے ساتھ اس کے افتتاح کے لیے ہم نے جانا تھا۔ موسم بہت خراب تھا لیکن پھر بھی چینی چونکہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور ہر کام ٹائم پہ کرتے ہیں، تو ٹائم پہ ہم چینی سفارت خانے گئے، وہاں سے مہمانوں کو اٹھایا اور ہم HMC ٹیکسلا پہنچے۔ جب ٹیکسلا پہنچے تو بارش کافی ہو چکی تھی اور ہو رہی تھی، لیکن بہرحال ہم ٹیکسلا پہنچنے کے بعد جو ہی نئی تعمیر شدہ بلڈنگ میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی چھت سے پانی ٹپکا اور آ کر چینی سفارت خانے کے کوٹ پر گر گیا۔ تو شہاب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوئی، شرمندگی ہوئی، لیکن چینی سفارت خار نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑا سا آگے چلے، پھر وہاں سے چھت ٹپکی اور چینی سفارتکار کے کوٹ پر آ گرا پانی۔ وہ شہاب صاحب کہتے ہیں میرے کوٹ پہ بھی گر رہا تھا، لیکن میں ظاہر ہے چونکہ میں میزبان تھا تو مجھے زیادہ امبیرسمنٹ اور زیادہ شرمندگی مہمان سے محسوس ہو رہی تھی۔ تو میرے تاثرات دیکھ کر چینی سفارتکار مسکرایا اور اس نے کہا کہ شہاب صاحب آپ پریشان نہ ہوں، ہماری چھت سرکاری چھت ایک دفعہ ٹپکی تھی لیکن اس کے بعد ہماری کوئی عمارت نہیں ٹپکی۔ تو شہاب صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی حیرت سے ڈپلومیٹ سے پوچھا کہ سر آپ نے کیا کیا کہ کوئی آپ کی عمارت دوبارہ نہیں ٹپکی؟ تو چینی سفارت خار نے بتایا کہ ہماری جو پہلی بلڈنگ ٹپکی تھی ہم نے اس کے ٹھیکیدار کو اسی دن پھانسی دے دی تھی۔ اس پھانسی کے بعد ہماری کوئی نئی بننے والی بلڈنگ جو ہے خاص کر سرکاری وہ نہیں ٹپکی۔ میرا خیال ہے میرے ویور سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں 1-2 منٹ میں آپ کو اس بدقسمت ملک کی کہانی سناتا رہتا ہوں، تو یہ بھی چھوٹا سا واقعہ اس بدقسمت ملک کے جو ہے وہ آپ کو مستقبل کا، آپ کو ماضی کا، آپ کو حال کا وہ جو ہے وہ پتہ بتا دے گا۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یا اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس کو لازمی پیچھے جانا پڑے گا۔ صحابہ 4-5 صحابہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور وہاں پہ خطاب کا پہاڑ جیسا بیٹا عمر زار و قطار رو رہا تھا۔ تو صحابی بڑے جو ہے وہ حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے، کیونکہ انہوں نے خلیفہ کو ہمیشہ حوصلہ مند اور صبر کرنے والا پایا تھا۔ اس دن وہ بڑے رو رہے تھے تو صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے اور دوسرے خلیفہ راشد سے فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ تو خلیفہ راشد نے فرمایا کہ کل اطلاع ملی کہ فلاں جگہ پہ جو پل تعمیر ہوا تھا وہ پل شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، وہاں پہ چھوٹا سا گڑھا بنا اور مجھے رپورٹ ملی کہ وہاں بکری کی ٹانگ پھنس گئی اور اس ٹانگ کے پھنسنے کی وجہ سے اس بکری کی ٹانگ زخمی ہو گئی بلکہ ٹوٹ گئی۔ اب مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اس ٹانگ کا حساب میں کیسے دے پاؤں گا، وہ جو پل میری سپرویژن میں بنا اور اتنی جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب ایک اور بات، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب پہلے خلیفہ راشد نے حلف لیا تو تھوڑے دن بعد زکوٰۃ دینے سے کچھ لوگ مکر گئے۔ کیا پیغمبر گئے، اب کون سی زکوٰۃ؟ اور ویسے بھی زکوٰۃ پہ ہم سب کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت زیادہ تکلیف جو ہے نا ہوئی ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ ان سے جنگ کی جائے گی۔ تو کچھ صحابہ نے مصلحت کا جو ہے وہ تقاضا کیا کہ تھوڑی نرمی برتیں، ابھی پیغمبر گئے ہیں تو معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا خدا کی قسم اگر ایک ایسی رسی
जिससे ऊंट बांधना हो, वो रस्सी भी अगर ज़कात में बनती हुई तो वो उस रस्सी को भी नहीं छोड़ूंगा, आप तो ज़कात छोड़ने को कहते हैं। इस तरह कौमें खड़ी होती हैं। मैंने एक वीलॉग में जिक्र किया था कि सजा और जजा का जो तस्वुर है वो अल्लाह पाक का है, जो कि इंतहाई करीम है, जो रहमान है, जो रहीम है, लेकिन इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अपने 75 साल निकाल कर देख लें, हर कान टूटा हम पे क्यों मुलविस है, किसको सजा मिली है। हर 10 साल बाद आकर आइन रोंद दिया जाता है, आइन तोड़ दिया जाता है। कभी सुना है किसी मुल्क का आइन तोड़ दे? जब आइन ही तोड़ दिया गया मुल्क का, जब आइन ही टूट जाए तो बकाया कौन से इदारे और कौन सी बदमाशियां और कौन सा डिसिप्लिन आइन ही वायलेट हो गया। आप सिर्फ अभी देखें, ये जो कब्जा ग्रुप बैठा है, ये काकड़, और इससे पहले पंजाब, उससे पहले KPK, फिर सिंध में एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बैठा है, यानी वजीर आला। उसको नहीं पता कि मैं कब्जा करके बैठा हुआ हूं। किस मुंह से उसने जस्टिसी की होगी या किस मुंह से उसने जजी की होगी कि वो बैठा है, गैर आईनी बैठा है। हुकूमतें चारों गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो यहां पे पहले ठेकेदार को अगर फांसी दी जाती, अगर रस्सी पर कंप्रोमाइज न किया जाता 75 सालों में, तो इस मुल्क का नक्शा मुख्तलिफ होता। लेकिन ये करने वाले भी खुद हैं, मुकदमा लड़ने वाले भी खुद हैं, फैसला सुनाने वाले भी खुद हैं। हमारी किसने सुनी है या पहले सुनी है, जमहूर की किसने सुनी है? लिहाजा हालात आपके सामने हैं। अब इससे जुड़ी हुई खबर, नवंबर 2023 से नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक 1400 अरब रुपए वो कर्जा लिया गया है। अब बताएं, यानी 1400 अरब रुपया, ये मुंह से कहना आसान है। हम अपने बच्चे को, छोटे को या बड़े को 100 रुपया देते हैं और फिर 4 दफा तफ्तीश करते हैं, और करनी भी चाहिए कि उसने 100 रुपए का क्या किया है। और फिर वो हमें हिसाब देता है कि मैंने 20 रुपए की फलां चीज अमीनी कही थी और 30 रुपए की फलां चीज कही थी और ये पैसे बकाया हैं। अब है या ये सरकार, ये दादुशुमार बता रहा हूं कि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक ये 1400 अरब रुपया वो किस पाकिस्तानी की किस्मत तब्दील करने पर लगा है, पाकिस्तान के किस शहर में लगा है, पाकिस्तान के किस गरीब को सब्सिडी मिली है, कौन सी चीज सस्ती हुई है, कहां पे जिंदगी में आसानियां पैदा हुई हैं, कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं, ये कहां गया होगा? जी, ये गया होगा प्रोटोकॉलों में, ये गया होगा काकड़ के दौरों में, ये गया होगा एफल टावर के ऊपर खाना खाने में, ये गया होगा नवाज शरीफ के पीछे 10-15 गाड़ियां चलाने में, ये गया होगा मरियम नवाज को सरकारी प्रोटोकॉल देने में, ये गया होगा गार्ड ऑफ ऑनरों में, ये यहां पे गया होगा। और ये गया होगा 10 अरब की सूरत में भड़वे के, जो भाड़े के टट्टू हैं, भड़वे सहाफी, उनके पास, चाहे वो डिजिटल हैं चाहे वो उसके हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ये वहां पे गया होगा। वरना गरीब किसान वो तो पैसे हाथ में लेकर वो कतारों में खड़ा है खाद के लिए। यानी यहां पे बम बंदूकें तो बहुत आसान है, आपको जगह जगह पे मिल जाएंगी, आपको लोग घर पहुंचा देंगे, और उनको सजा दी जा रही है कि तुम लोग हलाल कमाते हो, इस मुल्क में रह के तुम लोग हलाल कमाते हो, लिहाजा लगो लाइनों में और खाद खरीदो और अपनी फसलों को डालो और गल्ला इन हालात में पैदा करो, क्योंकि इससे लाहौर का दारुल हुकूमत पलेगा, ये शदाद की जन्नत ये इस्लामाबाद पलेगा, इस पे जो है वो कराची पलेगा। लिहाजा तुम लोग जो है ना वो उगाओ, गल्ला उगाओ, इन हालात में उगाओ जो हालात हमने कर दिए हैं। खाद ब्लैक पे मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा ये हो रहा है। और कोई आप में से मोहतरम व्यूअर्स कमेंट्स में कोई लिख दे, अपना कीमती फीडबैक दिया करें। आपको कहा है पार्टिसिपेट किया करें, मेरी भी रहनुमाई किया करें कि कोई इनसे पूछ ले, चाहे कोई कितना बड़ा मुनसिफ आला है, कोई कितना बड़ा कादी फायजीसा है, कोई कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना वो खड़पेंच है, कि सर ये जो आपने लिया
नवंबर 2023 से 22 से नवंबर 2023 तक ये 1400 अरब रुपया वो कहाँ गया। एक दिन मिसाल दी थी कि पाकिस्तानियों की मिसाल यूं है कि मैं महमूद नियाजी, मुझे मर्सिडीज बहुत अच्छी लगती है, मैं जाकर शोरूम से मर्सिडीज ले आऊं, ठीक है जी, मर्सिडीज ले आऊं और ये जो मेरा मोहल्ला है इन पर तकसीम कर दूं कि आपने जो है वो पैसे देने हैं। चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई दुकानदार है, मर्सिडीज मैं एंजॉय करूंगा, मर्सिडीज की ड्राइव से मैं महजूज होऊंगा, उस पे मेरी फैमिली मजे करेगी, लेकिन कर्जा मोहल्ले वालों ने अदा करना है। मेरा ख्याल है कि आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। ये करते क्या हैं, ये पैसे ले लेते हैं, ये पैसे खर्च कर डालते हैं और तकसीम कर देते हैं 24 करोड़ पे, तकसीम कर देते हैं 25 करोड़, यानी जितनी भी आबादी है इन पे लगाओ। गैस के मीटर पर फिक्स 1000 रुपये लगाओ, इन पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पिछले 6 महीनों का डालो, लगाओ इन पे 1 लीटर पे 90 रुपए टैक्स, पेट्रोल पे लगाओ इन पे डीजल के 1 लीटर पर 80 रुपए टैक्स, करो बिजली महंगी 4 रुपए 5 रुपए यूनिट और वसूल करो। ये मैंने आपको मिसाल दी, मर्सिडीज मैंने ली और उसके जो पैसे हैं वो मोहल्ले ने अदा करने हैं। ये फिरौन के गुलाम मेरे समेत ये 75 से कोलू के बैल की तरह ये फिर रहे हैं, ये कमा रहे हैं अपनी हलाल की, अपनी मेहनत की कमाई, और इनकी अयाशियां और इनके प्रोटोकॉल और इनके जोहराने, इनके असराने और इस शदाद की जन्नत को जिसका नाम इरम था, मेरा ख्याल है इस शदाद की जन्नत को आप जाकर देखें, आपको एक एक रोड पर। मशरकी पाकिस्तान वालों ने क्या कहा था, मशरकी पाकिस्तान वालों ने कहा था कि हमें सारी पटसन की जो कमाई है वो कराची के रोडों पे नजर आती है, वो पिंडी के रोडों पर नजर आती है, लेकिन ढाका में नजर नहीं आती। वो यही तो बात कहते थे कि सारा हमारा कोई यहाँ पे। तो आप अपने देहातों पे हालात देख लें, अपने शहरों के हालात देख लें और इस्लामाबाद जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके टैक्स वो कहाँ पे लग रहे हैं, किन की जो है सहूलतकारी पे लग रहे हैं, किन के आराम के लिए लग रहे हैं, कौन कौन सी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और खड़ी हो रही हैं। रऊफ क्लासरा साहब ने रिपोर्ट दी है कि खान साहब जेल में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के उनको कहा कि मैंने तुम्हारे नाम भी जानता हूं, तुम्हारी शक्लें भी जानता हूं और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह तुम लोगों पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। फिर रऊफ क्लासर ने तनकीद की है कि खान साहब तो बड़े आराम से जेल काट रहे थे, बड़े सब्र में थे, लेकिन उन्होंने आस्तीनें चढ़ाकर, जिस तरह मैंने चढ़ाई हुई हैं, आस्तीनें चढ़ाकर वो मेंबरान पर पिल पड़े। तो कोई रऊफ क्लासरा साहब से पूछे कि जिस हालत में वो शख्स है, जितने उस शख्स पे केसेस बन गए हैं और सारे के सारे झूठे, और जेल के बाहर अखबारों में और मीडिया पे उसके साथ जो कुछ हो रहा है, तो क्या किसी इंसान को, और वो भी गैरतमंद इंसान को, वो भी ईमानदार इंसान को, वो भी एक दयानतदार इंसान को गुस्सा नहीं आ सकता? मैं कहता हूं कि खान साहब के पास अगर कुछ होता तो वो तो इनके सर खोल देते। यानी ये कह रहे हैं कि हमारी जो है वो तौहीन हुई है। तुम्हारी तौहीन तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम लोग तो भाड़े के टट्टू हो, तुम लोग तो भड़वे हो, तुम लोग तो दलाल हो। तुम लोगों का काम ये था कि 90 दिन में इलेक्शन कराना, और वो तुम छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हो। तुम ग्रिल कर रहे हो एक सियासी जमात को, तुम उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हो, तुम उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। ये तुम लोग अपना हराम की तनख्वाह ले रहे हो, हराम पे अपने बच्चे पाल रहे हो, हराम पे बीवियों को शॉपिंगें करा रहे हो। ये जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, ये होते कौन है वहां पे जाकर जो है ना फर्द जुर्म आयद करने वाले? सिकंदर सुल्तान राजा जो तुम लोगों का बाप है या बॉस है, उसके बारे में पूरे पाकिस्तान से पूछ लो कि कुत्ते जितनी उसकी इज्जत नहीं है। लेकिन ये लोग, इनको माल चाहिए, इनको तनख्वाहें चाहिए, इनको पेंशनें चाहिए, इनको फ्री पेट्रोल चाहिए, इनको फ्री डीजल चाहिए। गैरत का या इज्जत से इनका क्या लेना देना? वो तो इनको जो है ना इनके नसीब में ही नहीं है।
बिल्कुल, और बिल्कुल खान साहब ने ठीक कहा है कि अगर खुदा उनको मौका दे तो जो उन्होंने पहले नहीं किया बाजवे के कहने पर और ब्यूरोक्रेसी के कहने पर कि जी छोड़ें, दफा करें और सारा कुछ जी बस आप वजीर आजम बन गए, तो उनको खुदा मौका दे तो वाकई इन पे आर्टिकल 6 लगाएं। हर वो बंदा आर्टिकल 6 के जद में आएगा जिसने बंदयाल के फैसले के बाद इलेक्शन नहीं कराए। जो जो रुकावट बना उस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और सबसे पहले ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये भाड़े के टट्टू, ये चाबी वाले खिलौने, ये किसी के बूट पालशिए, ये जिसकी गोदों में बैठे हैं और पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक उड़ा रहे हैं, उधर अरबों रुपया निकलवा लिया वफाकी हुकूमत से कि हम इलेक्शन करा रहे हैं। ये इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन इसे कहते हैं कि हम इलेक्शन करा रहे हैं। सारे बहरानों का जिम्मेदार ये सिकंदर सुल्तान राजा और वो जो जहन्नुम की लानत उन पर वो जो 4 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बैठे हैं वो दोज़खी, उन पर जो है आयद होती है ये जो भी बहरान है। क्योंकि जो उनका जिस बात की वो तनख्वाह लेते हैं उस बात को छोड़कर वो सारे काम कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ की जो है ना पॉलिश कर रहे हैं, मरियम नवाज के सैंडल जुबान से चमका रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लंबे बूट चमका रहे हैं, लेकिन जो उनको काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और खान साहब ने बिल्कुल ठीक किया है, अगर गुस्सा किया है तो इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए और इंशाल्लाह लगेगा, क्योंकि हालात जो है वो एक जैसे कभी नहीं रहते। और आखिरी खबर ये है वो हफीजुल्लाह न्याजी के हवाले से है। हफीजुल्लाह न्यादी किन की जुबान बोलते हैं, किन के बंदे हैं, ये आपको बेहतरीन पता है। हफीजुल्लाह न्यादी फरमाते हैं कि मैंने मरियम नवाज से मुलाकात में कहा कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गए हैं। आप लोगों ने 16 महीने की हुकूमत के लिए अपना बयानिया दफन कर दिया। इमरान खान ने मुखालिफ बयानिया अपना लिया और उसके सारे गुनाह माफ हो गए और वो इंतहाई मकबूल हो गया। तो उस नेक परवीन ने, जिसका नाम मरियम नवाज है, उस नेक परवीन ने एतराफ़ करते हुए कहा कि अगर हम डील न करते तो इमरान खान वो जनरल फैज़ के साथ मिलकर हमें जिंदा गाड़ देता। ये बात एक दफ़ा वो जो चिकड़ छोला है, वो लोहे का छोला साद रफीक, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में कही थी। अब आप अंदाजा करें मादरत कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, प्रायोरिटी अपनी खाल बचाना है। अब अगर फैज चीफ बन जाए, इमरान खान वजीर आजम हो, नवाज शरीफ वजीर आजम हो, मुझे क्या डर है। हाँ, अगर मुझे वीलॉग्स पे उठाते हैं या मुझे वीलॉग्स पे फांसी देते हैं तो वो तो एक अलग बात है कि जी आपका ये जुर्म है, आप बोलते थे, ये तो मैं कबूल भी कर लूंगा कि हाँ ठीक है। लेकिन मुझे क्या कि जनरल फैज जो है ना वो चीफ हो या बाजवा चीफ हो, कोई भी हो, लेकिन मरियम साहबा ने, नेक परवीन ने एतराफ़ किया है कि फैज़ और इमरान 10 साल तक जो है वो ये निज़ाम चलाते और हमें ज़िंदा गाड़ दिया जाता। क्योंकि हफीज़ न्यादी ने तो आगे तशरीह नहीं की ना। हफीज़ न्यादी ने तो इतना क्या है, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या माल हमने दबा रखा है। हमने एवन फील्ड कैसे बनाए, हमने मेफेयर कैसे बनाए, और वो जिनको कोई पाकिस्तान में क्लर्क ना रखे, वो 2 जो बरतानवी शहरी बने हुए हैं उनको वो कैसे अरबों के कारोबार का जो है ना वो मालिक बन गए। उनको जिनको बोलना नहीं आता वो इंग्लैंड में कारोबार करते हैं। तो जाहिर है पूछा जाता, खान पूछ भी रहा था कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो वो हजरत उमर से एक सहाबी ने पूछा था कि ये आपका कुर्ता कैसे हुआ है, तो उन्होंने भी जवाब दिया था। हुक्मरान जवाब दे हैं, बिल्कुल जवाब दे हैं। कल के वीलॉग में अर्ज किया, यहाँ इलेक्शन कमीशन की तौहीन है, यहाँ अदालत की तौहीन है, यहाँ हाई कोर्ट की तौहीन है, यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन है। ये सारी तौहीन है, सिर्फ एक तौहीन यहाँ पे नहीं है और वो है कौम की तौहीन, लोगों की तौहीन, जो पूरी महज़िब दुनिया में मैटर करती है। पहले लोग और उसके बाद मुल्क होंगे, लोग होंगे तो पार्लियामेंट होगी, लोग होंगे तो कादी फायद ईसा की बदमाशी होगी, लोग होंगे तो पंजाब हाई कोर्ट के भट्टी साहब की बदमाशी होगी, लोग होंगे तो ये प्रोटोकॉल। जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर तौहीनें कौन सी और बेइज्जतियां कौन सी। आप अपने जो वजीफे हैं वो कहाँ से लेंगे, आप प्रोटोकॉल कहाँ से लेंगे, आप सरीना होटलों में जो है ना वो शाये कहाँ से करेंगे अगर लोग ही नहीं होंगे।
تو یہاں پہ جو توہین ہے وہ ان کی ہے، لیکن قوم کی کوئی توہین نہیں ہے۔ آپ الیکشن کروائیں نہ کروائیں، آپ ان پر قبضہ گروپ مسلط کر دیں، آپ ان پہ محسن نقوی زیادہ چماٹ مسلط کر دیں، آپ اس پہ کاکڑ جیسا ایک ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پینے والا، جس کو چائے دینے والا نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، وہ قبضہ کر لیں، اس کی خیر ہے۔ قوم کی توہین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ قوم کی توہین ہے ان چوروں کی، ان دو نمبروں کی، ان گنڈ کپوں کی، ان بدماشوں کی، وہ توہین ہے ہر جگہ پہ۔ تو بہرحال مریم بی بی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ راستہ ہمیں آتا ہے، وہ بڑا آسان راستہ ہے، ہم اس پہ چلیں۔ تو پھر مریم بی بی کے کسی نے کان میں بتایا کہ بی بی وہی راستہ ہے، اسی پہ چلو، بوٹ چمکاؤ، زبان سے چمکاؤ، کپڑوں سے چمکاؤ، تھوک لگا کے چمکاؤ بوٹ، تو وہ راستہ وہ بہترین ہے۔ اور تم لوگ اب نفرت کا استعارہ بن گئے ہو، تم لوگ ظلم کا استعارہ بن گئے ہو، تم لوگ ضلالت کی نشانی بن گئے ہو، اب وہی راستہ اپناؤ، وہی شارٹ کٹ ہے۔ تو نیک پروین نے بالآخر اعتراف کیا ہے کہ ڈیل کے علاوہ، باجوے کے ساتھ ڈیل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے جو گل کھلا رکھے تھے تو اس کے لیے ڈیل ہی بنتی تھی، یا ہم چمڑی بچاتے یا دمڑی بچاتے۔ اور کمی کموڑوں کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان کا ہمیشہ کام ہوتا ہے دمڑی بچانا، یعنی وہ بالکل جو ہے ان کی دمڑی بچ جائے، یعنی وہ چمڑی تھوڑی بہت وہ دے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ دمڑی نہیں جانے دیتے ہندوؤں بنیوں کی طرح۔ جو ہندو بنیے ہیں نا وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ باجوے کے ساتھ بالکل ہماری ساری سیٹنگ تھی، باجوے نے ہمیں کہا کہ اس کو جلدی جلدی اتارو ورنہ یہ تم لوگوں کے لیے آکسیجن بند کر دے گا، اور تم لوگوں کو، اور وہ خود بھی، وہ جو بڑا دلال تھا باجوہ، وہ اپنے چکر میں وہ ان کو بھی ڈرا رہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دو کسی طریقے سے، میں اس قوم کا اور 3 سال خون پیوں اور یہاں سے مال بٹوروں اور اس قوم کو اور بے وقوف بناؤں، لہذا ایکسٹینشن، ان کے 16 مہینے، ان کے کیسز، یہ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کر لینی ہے اور فیڈ بیک دیا کریں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، آپ لائک نہیں کرتے، لائکس بہت کم ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ لائک کے بٹن پہ کرنٹ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ لائک نہیں کرتے۔ دوسرا، اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں ایک عام آدمی کو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔